Good morning, students. Myself Jeenu Malik. I will help you to understand Geography of class 10th. Dear students, in our previous class, we have started Chapter 1 Resources and Development. In that class, we have discussed the definition of resources, classification of resources, the major problems which are society facing nowadays because of the indiscriminately use of resources. We have discussed sustainable development, the first International Earth Summit, Agenda 21. In today's class, the following topics to be covered: resource planning in India, conservation of resources, land utilization. Now, our first topic is resource planning. Dear students, why is resource planning necessary? It is necessary for the balanced resource planning at national, state, regional and local level. As you know that India has enormous diversity in the availability of resources. There are regions which are rich in certain type of resources but are deficient in some other resources. For example, Rajasthan is poor in water resource but rich in solar and wind energy. Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh are rich in mineral resources but northern India or Ladakh is poor in these vital minerals. Along with this, Arunachal Pradesh has ample amount of water while Arunachal also deficient in other infrastructural resources. Along with this balance of resource planning at national, state, regional and local level, this also helps us to avoid the wastage of resources, to reduce the environmental pollution. With the help of resource planning, we can also reduce or avoid over exploitation of resources. So अब हमें importance पता चल गई है कि what is the importance of resource planning. Now the next step is how we can do resource planning. In India, resource planning can be done with the help of 3 stages. The first one is आइडेंटिफिकेशन एंड लिस्टिंग. लिस्टिंग को इन्वेंट्री भी बोलते हैं. सो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस. सेकेंड स्टेप इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंड थर्ड स्टेज इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान with overall national development plan. Now, first stage in detail. In the first stage, we identify. क्या आइडेंटिफाई करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सर्वे मैपिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से प्लेसेस पर रिसोर्स कितनी क्वांटिटी में किस क्वालिटी में अवेलेबल हैं और अलोंग विद दिस वो कौन से प्लेसेस हैं जहां पर रिसोर्सेस नहीं है या डेफिशिएंसी है रिसोर्सेस की और कौन से रिसोर्सेस में डेफिशिएंसी है. सो विद द हेल्प ऑफ सर्वे एंड मैपिंग we measure the quality and the quantity of resources. So after getting or collecting the data from the survey or mapping, on the second stage we develop a plan. A structured plan हम develop कर लेते हैं और second stage पे ही we also find out what kind of suitable technology we required to fulfill our एम. कि हमने जो फर्स्ट निकाली है इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन में वो जो मिनरल्स है उनको एक्सेस करना है तो उनके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है, स्किल्ड या सेमी स्किल्ड, किस तरीके की स्किल्ड लेबर हमें चाहिए एंड व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेटअप वी रिक्वायर्ड. सो वो सभी हम फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में
क्लियर कर लेते हैं। आफ्टर गेटिंग द डाटा ऑफ फ्रॉम दीज टू स्टेजेस हम एक रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान रेडी कर लेते हैं। नाउ थर्ड स्टेज, ऑन थर्ड स्टेज वी मैच आवर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। हमारी गवर्नमेंट ने अपनी कंट्री के लिए नेशनली क्या एम डिसाइड किया है, नेशनल डेवलपमेंट की कौन सा एम हमने डिसाइड किया है, क्या उसको अचीव करने के लिए हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान एफिशिएंट है या नहीं है, ये हम थर्ड स्टेज पर फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर उसमें कुछ और रिक्वायरमेंट है तो वो भी ऐड की जा सकती हैं। सो दैट्स व्हाई ऑन थर्ड स्टेज आवर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान मैच विद द नेशनल ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। अब हमें पता चल गया है स्टेजेस भी रिसोर्स प्लानिंग की। सो वी आर वेरी मच क्यूरियस कि व्हाई दीज रिसोर्सेस आर सो इम्पॉर्टेंट और why the availability of resources is necessary. Dear students, the availability of resources is necessary condition for the development of any country, any region. Not just the availability of resources, सिर्फ resources जो है उनकी availability जो है वो ensure नहीं करती development को. Along with the resources, we also required the appropriate technology, appropriate institutional changes or setups, qualitative human resource. Quality से क्या मतलब है? Skillful, educated. So, after the combination of these four things, any country or any region can develop. In our Indian history, द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन, जब इंडिया जो है वो ब्रिटिश की कॉलोनी था, सो हम उस टाइम पे देख चुके हैं कि हाउ द कॉलोनाइजेशन रिवेल्स द रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो किसी रीजन पर अटैक या उसको रूल क्यों करते थे? क्योंकि उनको वहां के जो रिसोर्सेज हैं वो अट्रैक्ट करते थे। And it was the primarily high level of technological development of the colonies countries that helped them to exploit the resources of other region and establish their supremacy over the colonies. वो यूरोपियन कंट्रीज और बाकी की कंट्रीज जिन्होंने दूसरे रीजन को अपनी कॉलोनी बनाया था, वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते गए और with the help of technology they grew or they developed day by day. जबकि जहां से उन्होंने रिसोर्सेज को लिया वो रीजन डिग्रेड होते गए या पुअर होते चले गए। सो therefore we can say resources can contribute to the development only when they are accompanied by appropriate technology, appropriate institutional changes, and also required the quality of human resources. After knowing the importance or availability of resources, our next is how we can conserve these resources. First of all, we must know what is resource conservation. Dear students, using the resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. हम रिसोर्स को एथिकली केयरफुली यूज करें और उन्हें इनफ टाइम दें कि वो अपने आप को रिन्यू कर पाएं, सो उसको हम कहेंगे रिसोर्स कंजर्वेशन. Why resource conservation is necessary? Because we know that many resources are non-renewable. They can't renew, और या हम कह सकते हैं उनकी जो स्पीड है, उनका जो रेट है वो इतना ज्यादा स्लो है कि वो मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं टू रिन्यू. दे आर एग्जॉस्टिबल, खत्म हो जाएंगे जैसे ही हम उनको यूज करते हैं वो खत्म हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, कोल एटसेट्रा. सो
we required, or we can say that it is today's necessity. We have to conserve them so that we can use them for longer period of time. और जब हम कंजर्व करेंगे रिसोर्सेज को तो ये हेल्प करेगा हमें टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. जब ऑब्वियस बात है, जब कोई भी काम केयरफुली किया जाता है तो उसमें वेस्टेज कम होती है, और जब वेस्टेज कम होगी हमारे पास लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए रिसोर्सेज रहेंगे यूज करने के लिए, तो हम इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करेंगे. इट हेल्प्स अस टू प्रोग्रेस इकोनॉमिकली. Along with this, resource conservation also help us to protect our environment. जब रिसोर्सेज का यूज केयरफुली होगा, हम उनको रिन्यू होने के लिए, रिप्लेनिश होने के लिए टाइम भी दे देंगे, ठीक है. सो वो लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए हमारे लिए अवेलेबल रहेंगे, ध्यान से यूज करेंगे तो धीरे धीरे हम पाएंगे कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसके पोल्यूट होने की जो स्पीड है वो स्लो हो गई है. Now, it's not that कि अभी ये करंट ये कंसर्न बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, नहीं. 18th और 19th सेंचुरी में भी बहुत सारे लीडर्स और थिंकर्स जो हैं वो इसके बारे में अपने व्यूज दे चुके हैं, जिनमें से इंडियन लीडर गांधी जी के आइडियाज जो हैं वो काफी पॉपुलर हैं. अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड. इनफ में यहां पर रिसोर्सेज के लिए बोला गया है. रिसोर्सेज, सो देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड. गांधी जी कहते हैं कि सिर्फ अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए अगर हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो जो नेचर में जो अर्थ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो काफी हैं, सफिशिएंट है. बट अगर हम उनको नीड के लिए नहीं, अपनी ग्रीड को फुलफिल करने के लिए यूज करेंगे तो सारे के सारे रिसोर्सेज जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे. इसके साथ साथ गांधी जी जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को रूट कोज मानते हैं. किस चीज का रूट कोज? रिसोर्स डिप्लीशन का. ही सेड ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स, ग्रीडी लालची लोग, और जो सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं जो अपना ग्रो करना चाहते हैं ये सोचे बिना कि वो एनवायरनमेंट को कितना पोल्यूट कर रहे हैं, ऐसे ग्रीडी और सेल्फिश जो इंडिविजुअल हैं उनके साथ साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो रूट कोज है ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन. ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन. Gandhi ji once was against the mass production. He wanted to replace it with production by masses. यहाँ पर जो masses टर्म है ये यूज की गई है फॉर पीपल. और मास प्रोडक्शन कौन करता है? टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी. सो टेक्नोलॉजी जब आ गई और उसने ह्यूमंस को रिप्लेस कर दिया तो ह्यूमंस में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गया, इंक्रीज हो गई. और जब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो पीपल का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. और अगर इसी मास प्रोडक्शन को हम रिप्लेस कर दें प्रोडक्शन बाय मासेस से, सो उससे क्या होगा? पीपल को ज्यादा मौका दें हम काम करने का और वो प्रोडक्ट बनाएं. तो ऐसे में मास प्रोडक्शन में तो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, सो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा तो मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड भी ज्यादा होगी. फैक्ट्रीज उतना ही ज्यादा सामान बनाएंगी, जितना सामान ज्यादा बनेगा एनवायरमेंट उतना ज्यादा पोल्यूट होगा, ठीक है. और जब प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड एंड सप्लाई भी कम रहेगी, एवरेज रहेगी, तो एनवायरमेंट भी कम पोल्यूट होगा, पीपल को एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा मिलेगा, उनकी लाइफ भी अच्छी रहेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, ना कि डिक्रीज होगी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल लेवल पे ही इन सब चीजों को देखा जा रहा था, इंटरनेशनली भी एनवायरनमेंट जो है वो कंसर्न था. और इसका एग्जाम्पल हम देख चुके हैं व्हेन वी डिस्कस द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट.
इसके साथ साथ दूसरे एग्जाम्पल्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल क्लब ऑफ रोम, ये क्लब जो है इसने भी एडवोकेट किया था रिसोर्स कंजर्वेशन को इन अ सिस्टमेटिक वे इन 1968. आफ्टर दैट इन 1974 गांधीयन फिलोसफी जो है अगेन रिप्रेजेंट की गई बाय द स्क्रुमचर इन हिज बुक स्मॉल इज ब्यूटीफुल. तो स्क्रुमचर जो राइटर थे उन्होंने गांधीयन फिलोसफी से इंस्पायर्ड होकर एक बुक लिखी थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, जिसमें रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में बात की गई थी, उनको एम्फेसाइज किया गया था. एक रिपोर्ट आई थी 1987 में, ब्रुंडलैंड कमीशन रिपोर्ट. इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा एडवोकेट किया गया था, उसको प्रमोट किया गया था. और इसमें एक बुक इसी से इंस्पायर्ड होकर एक बुक लिखी गई थी आवर कॉमन फ्यूचर विच इज डिपेंड ऑन और एम्फेसाइज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड रिसोर्स. डियर स्टूडेंट्स, why we are reading land resource in this chapter? We are not discussing water resource or other mineral resource. We are discussing land resource because land is our basic resource. We live on land. We perform our economic activities on land. If land is not there, how we can stay, how we can live? Nothing is happening on earth. अगर लैंड इज नॉट देयर, ह्यूमन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. दैट्स वाई लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एटसेट्रा. सो वी कैन से दैट लैंड इज एन एसेट फॉर अस. इट इज एन एसेट, बट ये जो एसेट है ये फाइनाइट मैग्नीट्यूड में है. फाइनाइट मतलब लिमिटेड है, लिमिटेड. हम इसको इंक्रीज नहीं कर सकते, हम बढ़ा नहीं सकते. नेचर ने, कुदरत ने जितनी लैंड हमें प्रोवाइड करवा दी है बस वही हमारे पास है. ये इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट मैग्नीट्यूड है. That's why it is important to use the available land for various purposes with careful planning. हमें केयरफुल प्लान करके हमें लैंड को यूटिलाइज करना होगा. Now, India has land under a variety of relief feature, namely mountain, plateau, plains. प्लेन जो है वो 43%, माउंटेन 30% एंड प्लेटू रीजन में एक्वायर किया है 27%. So here we can see plain, plateau and mountain. So percentage जो है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है. Now we see how the plain relief feature, plateau relief feature and mountain relief feature helpful for human being. If we talk about India, so plain relief feature provide us the facility for agriculture, to establish industries, to establish our transportation system. plain पे कोई भी एक्टिविटी करना easy है, easy as compared to plateau and mountain. So प्लेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर है, इसीलिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है वो प्लेन्स पर रहना पसंद करती है, क्योंकि वहां पर हॉस्पिटल फैसिलिटी, स्कूल फैसिलिटी सब कुछ इजीली अवेलेबल होता है. डेवलप करना इजी है एज कंपेयर टू माउंटेन एंड प्लेटू. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज माउंटेन. How mountains helps us? Mountain are the source of perennial flow of rivers. Perennial का मतलब होता है throughout the year. Throughout year means साल भर हमारी रिवर्स के अंदर वाटर अवेलेबल रहेगा, ड्राई नहीं होंगी रिवर्स. जैसे कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं, स्पेशली जो हमारी डेक्कन प्लेटू रिवर्स हैं,
वो क्या है, सीजनल रिवर्स हैं। उनमें रेनी सीजन के टाइम पे रिवर फ्लो ज्यादा हो जाता है, और जैसे ही रेनी सीजन खत्म हो जाता है तो रिवर्स धीरे धीरे ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है, वाटर लेवल डिक्रीज हो जाता है। जबकि नॉर्दर्न प्लेन की जो रिवर्स हैं वहां पर पेरिनियल फ्लो ऑफ रिवर्स हैं, जिनमें थ्रू आउट ईयर पानी रहता है। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है, माउंटेन्स पे पाए जाने वाले जो ग्लेशियर्स हैं वो फीड करते रहते हैं हमारी रिवर को, इसीलिए उनमें साल भर पानी रहता है। और जब रिवर्स में पानी रहेगा तो हमारे फार्मर्स जो हैं वो इजिली अपने फील्ड्स को इरिगेट कर पाएंगे। हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए हमें पानी रिक्वायर्ड है, हमारी इंडस्ट्रीज को पानी रिक्वायर्ड है। सो रिवर जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती रहेंगी। दैट्स व्हाई माउंटेन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। अलोंग विद दिस माउंटेन ऑल्सो प्रोवाइड टूरिज्म। टूरिज्म के साथ साथ यहाँ पर फॉरेस्ट भी हैं जो हमारी वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए रहने के लिए हैबिटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसके साथ साथ हमारी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें वुड रिक्वायरमेंट होता है एज ए रॉ मटेरियल, तो उनके रिक्वायरमेंट पे हमारे माउंटेन्स पे पाए जाने वाले फॉरेस्ट फुलफिल करते हैं। तो वी कैन से दैट माउंटेन्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर इंडियन और फॉर एनीबडी। नेक्स्ट इज प्लेटू। सो अगर हम वर्ल्ड वाइडली भी देखें, सो प्लेटू जो है वो रिच होते हैं, दे पोसेस, किस चीज में रिच होते हैं, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट भी यहां पर होते हैं। सो दे आर रिच इन मिनरल्स, और मिनरल्स जो है किसी भी टूल को आपको बनाना है, किसी भी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश आपने करना है, कोई भी मशीनरी आपको बनानी है, तो उसके लिए आपको मिनरल्स रिक्वायर्ड होता है, मेटल्स रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आपको अपने व्हीकल्स को रन करना है, अपनी मशीनरी को रन करना है, तो उसके लिए आपको फ्यूल रिक्वायर्ड होता है। सो प्लेटू जो है आपकी इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। सो प्लेटू पोसेस रिच सोर्स ऑफ मिनरल, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। So we can say that land is utmost important resource for human being. Our next topic is how we can utilize the available land. So एक बार अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हम ये एक्चुअल पिक्चर देख लेते हैं इंडिया की, कहां पर प्लेटू रीजन अवेलेबल है। सो ये हमारा इंडिया का प्लेटू रीजन है जो आपको येलो पार्ट में दिखाई दे रहा है। ये हमारा माउंटेन रीजन है यहां पर और यहां पर। उसके अलावा यहां पर जो है आपको पता है डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया है। सो ये बाकी का जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर कोस्टल प्लेन्स, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ये हमारे यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड है और ये हमारा अंडमान आइलैंड है। सो प्लेटू जो है वो इंडिया के 27 पर है, प्लेन हमें 43% पर अवेलेबल है और माउंटेन जो है वो 30% पर अवेलेबल है। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन है आर रिलीफ फीचर। Our next topic is land utilization. In this topic, we see how land resources are used for different purposes. We divide the land utilization into 5 types. Number 1, forest. Number 2, land not available for cultivation. Third, other uncultivated land. Fourth, fallow land. And fifth, net shown area. First type is forest. Forest cover totally 23.3% area of total available land of India. इंडिया की जो टोटल लैंड है उसके 23.3% एरिया को जो है फॉरेस्ट कवर करते हैं। एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज दे सपोर्ट वाइल्ड लाइफ habitation, they support natural vegetation, they provide raw material for many industries. Along with this, वहाँ के जो नियर बाई जो भी रेजिडेंट्स हैं जिनके उनके लिए वो
वहां से फ्रूट्स गैदर करते हैं, वुड गैदर करते हैं, वुड को वो एज ए फ्यूल यूज करते हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फॉर अस। नेक्स्ट इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। सो इसको हमने टू कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में डिवाइड किया। नंबर 1 बैरन एंड वेस्टलैंड एंड सेकंड इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। फर्स्ट जो है बैरन लैंड, इट इंक्लूड्स totally barren land which cannot be used for cultivation along with uncultivated land in mountain, hilly slopes, desert, rocky regions। so वो totally आएगी हमारी barren land में जहां पर cultivation possible नहीं है। और अगर इसको cultivation possible यहां पर किया भी जाए तो input बहुत ज्यादा लग जाएगा, cost बहुत ज्यादा होगी और result जो है वो बहुत कम निकलेगा, आउटपुट बहुत ही कम होगा। सो नेक्स्ट इज वेस्टलैंड। वेस्टलैंड जैसे कि उसके नाम से हमें पता चल रहा है, ऐसी लैंड जो अभी फिलहाल के लिए अनकल्टिवेटेड है, वेस्ट है, वेस्ट हो रही है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, ऐसी लैंड को हम वेस्टलैंड कहते हैं। द लैंड विच इज लेफ्ट फेलो, फेलो मीन्स अनकल्टिवेटेड। इट कैन बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन आफ्टर इंप्रूविंग इट्स फर्टिलिटी। इसको हम इंप्रूव कर सकते हैं जब इसकी फर्टिलिटी को इंप्रूव कर सकें। एक एग्जाम्पल आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। अदर देन दिस ओवरग्रेजिंग पेस्चर्स, वाटर लॉग्ड मार्शी लैंड्स, इसके दूसरे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है कि कैसे सिर्फ गार्बेज पाइल यहाँ पर है, गार्बेज का ढेर यहाँ पर है। अगर इस पूरे गार्बेज को रिमूव कर दिया जाए, डिकम्पोज कर दिया जाए, तो इस लैंड को थोड़ी सी इसको फर्टाइल करके इसको कल्टीवेशन इस पर किया जा सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में हम लैंड को यूज करते हैं फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। जब हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए अपनी लैंड का यूज करते हैं तो वो आता है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में। सो टोटली जो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है, टोटली इसका परसेंटेज है 5.5%। नेक्स्ट टाइप इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। जो बैरन लैंड है, वेस्ट लैंड है और नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, उसके अलावा जो भी अनकल्टिवेटेड लैंड है, और इसको हमने डिवाइड किया है इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जो स्पेशली रखे गए हैं ग्रेज करने के लिए, सो दैट कि एनिमल जो है वहां पर ग्रेजिंग कर सकें। सो ऐसे परमानेंट पेस्चर्स और ग्रेजिंग ग्राउंड आते हैं फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड आते हैं मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स। सो ये इसमें कौन से ट्री और ग्रूव्स इंक्लूडेड हैं? ऑर्चार्ड्स, ऑर्चार्ड मीन लार्ज गार्डन, ग्रूव मीन्स स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज स्पेशली ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप, जिसमें आपके फ्रूट ट्री आ सकते हैं या फिर बैम्बू बुशेज हैं, थैचिंग ग्रास है, ये सब आते हैं। सो हम कह सकते हैं कि जो मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स और ग्रूव्स है वो एग्रीकल्चर पर्पज से यूज होता है, बट इट नॉट इंक्लूडेड इन द नेट शोन एरिया। जब नेट टोटली शोन एरिया जिसकी बिजाई की गई है, जब उसकी मेजरमेंट की जाती है उस टोटल एरिया की, सो उस मेजरमेंट में ये मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स और ग्रूव्स वाला जो एरिया है इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। सो परमानेंट प्रेशर है अराउंड हमारे 3.3% एरिया पर, 3.3, और जो मिसलेनियस यूज है ये अराउंड 1% है। अब थर्ड जो कैटेगरी है वो कैटेगरी आती है कल्टिवेबल लैंड। लैंड, so what it means? Cultivable land means the land available for cultivation. ये available है cultivation के लिए, but right now it is not cultivated. अभी ये यूज नहीं हो रही है। अराउंड लास्ट 5 years से इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इंक्लूडेड द करंट एरिया ऑल्सो। पिछले 5 सालों से इसको यूज नहीं किया जा रहा है। सो ऐसी जो लैंड है वो आती है कल्टिवेबल लैंड में, कि ये कल्टिवेबल तो इसमें पॉसिबल है बट इसको अभी यूज नहीं किया जा रहा है। इसके रीजन हो सकते हैं कि उस पर कोई कंफ्लिक्ट चल रहा हो किसी का, या फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई
अलग से कोई उसको प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया हो, तो उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि वहां पर अभी वाटर शॉर्टेज चल रही है, हो सकता है आने वाले टाइम में उसको फुलफिल कर लिया जाए। रीजन कुछ भी हो सकता है, बट पिछले 5 सालों से उसको यूज नहीं किया जा रहा है, ऐसी लैंड आती है हमारी थर्ड कैटेगरी में, कल्टिवेबल वेस्ट लैंड में। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी इज फेलो लैंड। फेलो लैंड का मतलब क्या होता है? फेलो लैंड मीन्स सच ए लैंड विच इज नॉट कल्टिवेटेड राइट नाउ। उसको अभी जो है वो फ्री रखा गया है, उसको अभी उसमें कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है। तो इसको हमने डिवाइड किया है करंट फेलो लैंड में एंड अदर देन करंट फेलो लैंड। करंट फेलो लैंड से मतलब है इस साल या 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर से या उससे भी कम टाइम से जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, वो आती है हमारी करंट फेलो लैंड में। विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, 1 साल, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, वो आती है हमारी करंट फेलो लैंड में। एंड सेकंड इज अदर देन करंट फेलो। अदर देन करंट फेलो which the land which left uncultivated for past 1 to 5 year, 1 साल से लेकर 5 साल तक जो लैंड कल्टीवेशन पर्पज से यूज नहीं होती, वो आती है हमारी अदर देन करंट फेलो लैंड में। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो कि ये जो लैंड है ये कल्टीवेबल है, इसको कल्टीवेशन पर्पज से यूज किया जा सकता है, बट इसको पिछले 1 साल से या उससे भी कम टाइम के लिए अगर इसको फेलो छोड़ा गया है, अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया है, तो वो कहलाती है हमारी करंट फेलो लैंड। और अगर इसे 1 से 5 साल तक के लिए छोड़ा गया है तो ये कहलाती है हमारी अदर देन करंट फेलो लैंड। अब फेलो लैंड जो है एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसको हमारे जो पीजेंट्स या फार्मर हैं वो प्रैक्टिस करते हैं जस्ट बिकॉज टू गिव रेस्ट टू द लैंड। कई बार लैंड को रेस्ट करने के लिए, अपनी फर्टिलिटी को रीगेन करने के लिए लैंड को फेलो छोड़ दिया जाता है 1 साल के लिए, 1 साल से ज्यादा लंबे टाइम के लिए, सो दैट अपनी न्यूट्रिएंट्स को, अपनी फर्टिलिटी को रीगेन कर ले सोयल। सो इसलिए कई बार लैंड को फेलो लैंड के तौर पे छोड़ दिया जाता है। सो ऐसी हो गई हमारी करंट फेलो लैंड। करंट फेलो में आती है हमारे 4.9% लैंड एंड अदर देन करंट फेलो लैंड में आती है हमारी 3.6% फेलो लैंड, अदर देन करंट फेलो लैंड। नेक्स्ट इज नेट शोन एरिया एंड ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। सो नेट शोन एरिया, यहां पर नेट शोन एरिया जो है और ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, वो 2 एग्जाम्पल की हेल्प से आपको समझाया जा रहा है। सो नेट शोन एरिया, इट रिप्रेजेंट एन एरिया इन विच टोटल क्रॉप्स आर ग्रोन ओनली वंस इन अ ईयर। पूरे साल में सिर्फ एक पर्टिकुलर लैंड से सिंगल क्रॉप अगर ली जाती है, इट रिप्रेजेंट एन एरिया इन विच टोटल क्रॉप्स आर ग्रोन ओनली वंस इन अ ईयर। सो ये आपका एग्जाम्पल हो गया नेट शोन एरिया। शुगर केन, ये अराउंड 10 to 11 मंथ लेती है शुगर केन ग्रो होने में। सो ये पूरी लैंड जो है 1 ईयर के लिए बुक हो जाती है और यहाँ पर एक एग्रीकल्चर ईयर में सिर्फ एक बार बिजाई होती है और क्रॉप ली जाती है। वाइल इन द ग्रोस क्रॉप्ड एरिया शोन once and also more than once in a given year is called gross cropped area. For example, rice, wheat, जो सीजनल क्रॉप होती हैं, जो एक पर्टिकुलर सीजन पे ग्रो करती हैं और 3 to 4 या 4 to 5 मंथ के लिए ग्रो की जाती हैं, तो वो लैंड जो है वो साल में 2 क्रॉप्स ग्रोन करने के पर्पज से यूज कर ली जाती है। सो हमारी नेट शोन एरिया, यहां पर जो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया है इसके अंदर हमारा इंक्लूड हो जाएगा नेट शोन एरिया प्लस वो लैंड जिस पर हम मोर देन वन शोन करते हैं सीड को। सो वो टोटल एरिया आता है हमारा ग्रोस क्रॉप्ड एरिया में।
सो इसके एग्जाम्पल हम राइस, वीट और बाकी की जो जायद क्रॉप्स होती हैं उनको लेने में हम कर लेते हैं। और शुगर जो है वो अराउंड 10 to 11 मंथ लेती है। तो ये साल में हम जो एग्रीकल्चर ईयर होता है उसमें एक ही क्रॉप हम ले पाते हैं। सो ये नेट शोन एरिया शोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट शोन एरिया, वो कहलाएगा हमारा ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। सो इस तरीके से हमने लैंड का यूटिलाइजेशन किया है। सो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन टुडे। वी डिस्कस द रिसोर्स प्लानिंग, द स्टेजेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, लैंड एज अ रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। ये आज की क्लास में हमने डिस्कस किया। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम आगे फर्दर का डिस्कशन करेंगे। Till then, stay happy, blessed, and do hard work. Thanks.